السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور میں ہوں رضوان علی احمد۔ خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ معاشی اصلاحات کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے تجاویز لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھرپور محنت کے بعد ملکی معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہوا، مہنگائی سنگل ڈیجٹ اور پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی ہے۔ کمالیہ میں کسانوں اور دیگر سٹیک ہولڈر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترسیلات زر اور زیر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ ٹیکس نیٹ میں اضافہ ملک کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ کسانوں، تاجروں اور تمام سٹیک ہولڈر سے مل کر معیشت کو استحکام کی جانب لے کر جائیں گے۔ زرعی پیداوار اور زرعی برآمدات میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہمیں برآمدات پر مبنی معیشت کی جانب جانا ہوگا۔ گزشتہ سال چاول کے برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری نے کہا ہے کہ 27 دسمبر کو عوام نے شہید بے نظیر بھٹو کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید بی بی کی جمہوریت کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وہ ہمیشہ کمزور طبقات کی آواز تھیں۔ کراچی میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے شہید بے نظیر بھٹو کا مشن جاری رکھا۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پاکستان کے تشخص کو بہت نقصان پہنچایا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے بطور وزیر خارجہ پاکستان کے خارجہ تعلقات بہتر کیے۔ وطن سے محبت میں جان نچھاور کرنا پاک فوج کے سپاہیوں کی پہچان ہے۔ شہداء کی داستانوں میں سے ایک داستان سپاہی راحیل احمد شہید کی ہے۔ سپاہی راحیل احمد شہید نے 29 اپریل 2024 کو آواران میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے لواحقین نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کو اپنے بہادر بیٹی کی شہادت پر فخر ہے۔ راحیل شہید میرا بیٹا تھا، وہ بہت بہادر تھا اور اس نے میٹرک کی اور فوج میں چلا گیا۔ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ فوج میں گیا تھا۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنے اس ملک کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مجھے اس پہ فخر ہے کہ اس نے بہت بہادری والا کام کیا۔ میرا بیٹا بہت اچھا تھا، میری خدمت میں اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میرا بیٹا آتا میری خواب میں، کہتا کہ امی آپ فکر نہ کریں، میں اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوں، جنت میں ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے 3 بیٹے اور ابھی ہیں، اگر میرے ملک کو ضرورت پڑی نا تو میں یہ تینوں بھی دے دوں گی اور ملک کی خاطر شہید ہو جائے، مجھے کوئی غم نہیں۔ جب وہ چھٹی آتا تھا وہ ہمیں بتاتا تھا کہ آج میرے ساتھی شہید ہو گئے اور میرے لیے بھی دعا کرو کہ میں بھی شہید کا رتبہ پاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کی اور انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا۔ ہمیں ان کی کمی تو محسوس ہوتی ہے، پر یہ بھی فخر ہے کہ وہ اپنے ملک کی خاطر اور اپنی قوم کی خاطر اپنی قربانی دی اور اعلیٰ رتبے پہ فائز ہوا۔ بچپن سے بہت شوق تھا اسے فوج میں جانے کا، وہ بہت بہادر تھا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ فوج میں گیا۔ دن میں 2 سے 3 بار فون کر کے پوچھتے تھے، باجی آپ کو کیا چاہیے، آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ ایک دن اس کا فون آیا، باجی میرے لیے دعا کرنا، میں دہشت گردوں سے لڑوں اپنے وطن کی خاطر، ہم ادھر سے کامیاب ہو کر آئیں۔ میں نے کہا اچھا بھائی خیر سے جاؤ۔ فخر محسوس ہوا کہ وہ اپنے وطن کی خاطر دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور افواج پاکستان نے اس جنگ میں بے شبہ قربانیاں دی ہیں۔ سال 2024 کے دوران مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 59,775 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ ان کامیاب آپریشنز کے دوران 925 دہشت گرد بشمول خارج کو واصل جہنم کیا گیا اور سینکڑوں گرفتار کیے گئے۔ گزشتہ 5 سالوں میں کسی ایک سال میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ دہشت گردی کے اس ناصور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 169 سے زیادہ آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کے بروقت اقدامات کی وجہ سے دہشت گردی کے کئی منصوبوں کو کامیابی سے ناکام بنایا گیا۔ ملک کو منشیات سے مکمل پاک کرنے کے لیے حکومتی اداروں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ سال ستمبر سے اب تک ملک بھر سے 1065 میٹرک ٹن منشیات ضبط کی گئی ہیں، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 2413 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔ گزشتہ ہفتے کے دوران ملک بھر سے 3246 کلو منشیات ضبط، جبکہ 30 منشیات فروش کو گرفتار کیا گیا۔ ضبط کی گئی منشیات میں 87 کلو سے زائد ہیروئن، 3000 کلو حشیش، جبکہ 27 کلو سے زائد میتھ اور 124 کلو افیون شامل تھی۔
पाकिस्तान में टायर्स की पैदावार के लिए ग्रीन फील्ड टायर्स मंसूबे का आगाज हो गया है। SIFC के ताउन से आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में बढ़ता हुआ किरदार है। बैनुल-अक़वामी मालियाती कॉरपोरेशन और मकामी बैंक्स की जानिब से आर्मस्ट्रांग ZE प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में $50.2 मिलियन तक की मसावी सरमायाकारी की है। ये मनसूबा मकामी टायरों की पैदावार को बढ़ाने के लिए सिंध के इलाके घारों में कायम किया जाएगा। इस मनसूबे के जरिए मकामी मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ बरामदात में भी इजाफे का इम्कान है। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान के तरक्याती मनसूबों में बढ़ता हुआ ताउन खुशाइंद है। मकामी पैदावार में इजाफे से दरामदात पर इन्हिसार कम और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। ये मनसूबा पाकिस्तान की इक़्तिसादी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम करेगा और आलमी सतह पर एक नई पहचान बनेगा। SIFC की मुसलसल कोशिशें मईशत की तरक्की, इस्तेहकाम और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। नाज़रीन, साल 2024 बहुत सी यादों के साथ रुखसत हो रहा है। इस साल भी मुख्तलिफ शोबों में नाम कमाने वाली चंद शख्सियात ने दुनिया को अलविदा कहा। सदफ अफजल ने कुछ ऐसे ही लोगों को याद किया है। देखते ही देखते साल 2024 भी बीत गया। अपने दामन में कुछ खुशियां और कुछ गम समेट के इस साल भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वतन के बहुत से बेटों ने जानों के नजराने पेश किए। सिक्योरिटी फोर्सेस के इन अफसरान और जवानों ने अपने खून से दिफाई वतन की कीमत अदा की। कौम उन शोहदा की मकरूज रहेगी। 2024 में पाकिस्तान की कई नामवर शख्सियात को अजल ने हमसे जुदा किया। इस साल शोहराए आफाक अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन हमसे बिछड़ गए। तलत हुसैन फने अदाकारी में उस्ताद का मकाम रखते थे। 70 की दहाई में अपने फनी सफर का आगाज करने वाले तलत हुसैन की डायलॉग डिलीवरी और चेहरे के तासुरात बेमसल होते थे। बिलाशुबा उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। टीवी, फिल्म और थिएटर के बड़े फनकार खालिद भट्ट भी इस साल दुनिया से रुखसत हुए। खालिद भट्ट ने PTV से अपने करियर का आगाज किया और अपनी हकीकत से करीब तर अदाकारी से लाखों दिलों में घर कर लिया। उनका आखिरी शाहकार ड्रामा खई था। पाकिस्तान टेलीविजन की माया नाज न्यूज़कास्टर और अनाउंसर तस्कीन जफर जून में खालिक हकीकी से जा मिली। 80 और 90 की दहाई में तस्कीन ने टीवी स्क्रीन पर राज किया। उनकी खूबसूरत आवाज और लहजे के लाखों परिस्तार थे। नाहिद अंसारी के नाम से कौन वाकिफ नहीं। सलीका शुआरी और सुघड़ापे की वजह से वो मीडिया इंडस्ट्री में खासी मकबूल थीं। उनके कुकिंग शोज से लाखों लोगों ने खाना पकाना, घरेलू सजावट और पहनने ओढ़ने का सलीका सीखा। PTV के सुनहरे दौर के सीनियर प्रोड्यूसर राशिद डार भी उन नामवर शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने 2024 में हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया। राशिद डार की हिदायतकारी में तैयार किए गए ड्रामे अलिफ नून, मनचले का सौदा, सोना चांदी और अंधेरा उजाला आज भी शाहकार माने जाते हैं। पाकिस्तानी सिनेमा और थिएटर के मारूफ मज़ाहिया अदाकार सरदार कमाल भी उन फनकारों में शामिल हैं जो 2024 में अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। कोक स्टूडियोज सीजन 2 से शोहरत हासिल करने वाली मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा हानिया असलम भी साल 2024 में दुनिया से कूच कर जाने वालों की फहरिस्त में शामिल हैं। फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार इल्ताफ हुसैन भी इसी साल मदाहों को सोगवार कर गए। धी रानी और लौंग द लिश्कारा समेत कई सुपरहिट फिल्में देने वाले इल्ताफ हुसैन ने कई चेहरे भी इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाए। PTV के सीनियर अदाकार मजहर अली फेफड़ों और दिल के आर्जे के बाइस अक्टूबर 2024 में इंतकाल कर गए। मजहर अली कई मशहूर ड्रामों जैसे अरूसा, अफशां का हिस्सा रहे। वो तवील अरसे से इंडस्ट्री से दूर होने के बावजूद अपने मद्दाहों को याद थे। साल 2024 में रुखसत होने वाला एक बड़ा नाम आबिद काश्मीरी का भी है। आबिद काश्मीरी ने थिएटर, टेलीविजन और फिल्म में बेहतरीन काम किया। उनका मखसूस अंदाज उनकी पहचान था। वो अंदरूने लाहौर की सकाफत का निशान थे। फने मौसीकी का बड़ा नाम उस्ताद ताफू भी इसी साल रुखसत हुए। कई लाजवाल फिल्मों की मौसीकी देने वाले उस्ताद ताफू की शोहरत तबला नवाज की हैसियत से भी मुसल्लमा थी। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया जिसमें 120 अफराद हलाक हो गए हैं। तैयारे में अमले समेत 181 अफराद सवार थे। अब तक सिर्फ 2 अफराद की जिंदा बच जाने की इत्तलात हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक तैयारे को हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस पेश आया। तैयारा मुवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से उतरकर हिफाजती दीवार से जा टकराया जिससे तैयारे में आग भड़क उठी। अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जाने वाली तमाम परवाजों को मनसूख कर दिया गया है। जनूबी कोरिया के हुकाम के मुताबिक इमदादी कार्रवाई में मसरूफ अहलकार तैयारे के अक़बी हिस्से में मौजूद मुसाफिरों को बचाने की कोशिश में अब भी मसरूफ हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कोरिया में तैयारे के हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमारी दुआएं सोगवार ख़ानदानों, कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी में 36 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। गजा शहर खान यूनुस और रफा पर इसराइली फोर्सेस की शेलिंग में कई अफराद शहीद और जख्मी हुए। आलमी इदारा सेहत ने कमान अदवान अस्पताल के डायरेक्टर और तिब्बी अमले की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि गजा में अस्पतालों पर इसराइली हमले और गिरफ्तारियां नाकाबिल कबूल हैं। सर्द मौसम के बायस बेयार और मददगार फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। अशिया खुरनोश और तिब्बी सहूलियात का शदीद फुकदान है। मकबूजा मगरबी किनारे में काबिज फौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों से कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 45,484 तक जा पहुंची है। तिल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ इसराइली शहरियों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर गजा में जंगबंदी के मुतालबे दर्ज थे। दोहा में फ़लस्तीनी ग्रुप के वफ़द ने कतर के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गजा में जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की और सीज़ फायर के हवाले से मुज़ाकरात में अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। यूनिसेफ का कहना है कि रवा साल हर 6 में से एक बच्चा जंग ज़दा इलाकों में रह रहा है। यूनिसेफ की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जंग की वजह से पहले से कहीं ज़्यादा बच्चे अपने घरों से ज़बरदस्ती बेघर हुए हैं। उनके मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 473 मिलियन बच्चे जंगज़दा इलाकों में रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गजा, सूडान और यूक्रेन में बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि रवा साल गजा पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी में 17,492 बच्चे शहीद हो चुके हैं। 2024 में दुनिया में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले मौज़ूआत। गूगल सर्च इंजन के बगैर इंटरनेट सारिफिन की ज़िंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। अमरीकी इंतखाबात 2024 में दुनिया में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला न्यूज़ इवेंट था, जो अमरीकी सियासत में आलमी दिलचस्पी की निशानदही करता है। गर्मी की शिद्दत दूसरी सबसे ज़्यादा तलाश की जाने वाली खबर थी, जबकि रवा साल पेरिस में मुनक्किद होने वाले ओलंपिक्स तीसरा सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला न्यूज़ इवेंट रहा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के हवाले से पाक फौज के हालिया बयान को सराहा है, जिसमें भारत के नाजायज़ तसल्लुत के खिलाफ बरसरे बेकार कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया गया है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत के शिकार कश्मीरी अवाम गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तान के इंतहाई मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज का बयान मज़लूम कश्मीरियों के जज्बात का अकास है। भारतीय चीरा दस्तियों के शिकार कश्मीरी अवाम पाक फौज का अपना मुहाफ़िज़ तस्वुर करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की भरपूर अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत कश्मीरियों के लिए उम्मीद की एक किरण है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में शामिल होना कश्मीरियों का एक देरीना ख्वाब है, जो एक दिन ज़रूर पूरा होगा। दूसरी जानिब मकबूजा वादी कश्मीर में शदीद बर्फबारी से बेशतर इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज होकर रह गए हैं। रेल सर्विस और परवाज़ें मुअत्तल हैं, जबकि श्रीनगर, जम्मू शाहरा और दीगर बड़ी सड़कें ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई हैं। श्रीनगर, जम्मू शाहरा पर सैकड़ों गाड़ियाँ फंस कर रह गई हैं। इंतज़ामिया ने तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। बर्फबारी के बायस बिजली का बहरान भी मज़ीद संगीन हो गया है। भारतीय इंतज़ामिया लोगों की मुश्किलात दूर करने में नाकाम है और तामीर और तरक्की के इसके दावों की कलई खुल गई है। रुख करते हैं एक मरतबा फिर कौमी खबरों की जानिब। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक के अवाम को ज़रई शोबे की तरक्की और राह में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए जदीद साइंसी और तहकीकी मालूमात तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए काम करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम के ज़ेर एहतमाम मुज़फ़्फ़राबाद में मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तफसील बताएंगे मुज़फ़्फ़राबाद से अदील अहमद खान। वर्कशॉप के दौरान माहिरीन ने फसलों, सब्जियों और फलों पर जहरीली अद्वियात और गैसों के स्प्रे के नतीजे में इंसानी सेहत, हयातियाती तनव और कुदरती माहौल पर पड़ने वाले मुज़र असरात से मुतालिक आगाही दी। वर्कशॉप के दौरान ज़राई शोबे में होने वाली साइंसी तहकीक को आम किसानों तक पहुँचाने और तंजीम की अब तक की सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वर्कशॉप के दौरान बताया गया कि 2020 तक के सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान पाकिस्तान में फसलों, सब्जियों और फलों पर अद्वियात और गैसेस का इस्तेमाल 1100% तक बढ़ चुका है और ये शरह मजीद बढ़ रही है। जो मुज़र ज़रात हैं वो आवाम तक पहुँचाने के लिए कि वो किस तरह हमारी सेहत को मुतासर करता है, वो किस तरह हमारे माहौल को मुतासर करता है, हमारे पानी को मुतासर करता है,
हमारी फ़ज़ा को आलूदा करता है। इस सब को देखते हुए हमने सोचा कि ये वाली एक्टिविटी की जाए और उन लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया जाए जो जिनको आगे बहुत सारे लोग और सुनते हैं। महफूज फसलें खरीदने की कोशिश करें और किसान को भी इनकरेज करें कि वो हिफाजत में रहते हुए अपने आप को ढांप के फिर स्प्रे करे जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो। माहिरीन ने पेस्टिसाइड्स के कम से कम इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए ज़राई शोबे में साइंसी तहकीक से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वर्कशॉप के इख्तिताम पर शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने मंडी बहाउद्दीन के इलाके चलियांवाला में गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज का इफ्तिताह किया। 28 कनाल रकबे पर मुहित कॉलेज की तामीर और तज़ीन व आराइश पर 25 करोड़ रुपए लागत आई है। कॉलेज में 800 से ज़्यादा तलबात की तालीम हासिल करने की गुंजाइश है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कहना था कि कॉलेज की तामीर से चलियांवाला के आसपास के मुतादिद गाँव और डेराजात की सैकड़ों तालिबात को मैट्रिक के बाद मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए घर की दहलीज पर आला तालीम की सहूलतें मैसर होंगी। इलाके के अवाम, वालिदैन और तालिबात ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान का शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अट्टे के तलबा का एजाज़। कॉलेज के 81 तलबा को हुकूमत पंजाब की जानिब से स्कॉलरशिप मिलने पर पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। होनहार स्कॉलरशिप के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा ने कहा कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक शानदार रिवायात का अमीन है और कॉलेज के 81 तलबा को स्कॉलरशिप मिलना बहुत बड़ा एहसास है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक प्रोफेसर खालिद जावेद सिद्दीकी और दूसरे मुकर्ररीन ने कहा कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक ने अपनी शानदार रिवायात बरकरार रखते हुए निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में डिविजनल और सूबाई सतह पर इनामात हासिल किए हैं। तकरीब के अख्ताम पर होनहार स्कॉलरशिप्स हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में चेक्स तकसीम किए गए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला जेहलम में भी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं जेहलम से नईम अख्तर भट्टी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर जिला जेहलम में भी हुकूमती सतह पर सफाई मुहिम शुरू हो गई है। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए रुकन कौमी असम्बली बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के जदीद निज़ाम का आगाज़ किया गया है। इस मनसूबे के ज़रिए 1300 अफराद को रोज़गार के मौके मैसर आएंगे और मुकामी सतह पर खुशहाली आएगी। डिप्टी कमिश्नर जेहलम मिसम अब्बास ने बताया कि पहले मरले में ज़िला भर से कचरे के ढेरों का खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद घरों से कचरा उठाने का अमल शुरू किया जाएगा। इससे मुझे यकीन है कि इस हमारे दीगर और मंसूबों के साथ मिला के बगैर इस मंसूबे से ख़ास तौर पे हमारे शहरों का, हमारे देहातों की शक्ल बदल जाएगी। उस सफाई की अदम फरामी की वजह से जो बीमारियाँ लाक होती हैं उससे भी बचत होगी। हमारे शहर में 3 तहसीलें सुहावा, दीना और जेहलम, यहाँ पे ये काम हम इब्तदाई तौर पे शुरू कर चुके हैं। उसकी माइक्रो मैनेजमेंट हो चुकी, जो गंदगी के बड़े ढेर हैं वो उसको ज़ीरो वेस्ट कर दिया जा चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला के सुथरा पंजाब प्रोग्राम को भरपूर सराहा है। मरियम नवाज साहबा ने वज़ीर आला पंजाब ने ये जो इक़दाम किया हमारे ज़िले के लिए ख़ास तौर पे, हम तो इनके बहुत मशकूर हैं। तो काफ़ी बेहतरी आई है इससे। नून लीग की जब भी हुकूमत आई है, इन हुकूमतों में काम हुए हैं, हमें इतना पता है। पिछली हुकूमत साहब का गई है 0/0 थी, कोई काम नहीं था। जो ख्वाब मैडम नवाज साहिबा का है, नवाज शरीफ साहब का है, जो हुकूमत का ख्वाब है, इंशाल्लाह हमने मिलकर इसको पूरा करना है। वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब का इक़दाम एक अहम और मुस्बत कदम है, जो ज़िला भर में सफाई, माहौलियाती बेहतरी और अवामी सेहत को बेहतर बनाने के लिए माहौल फराहम कर सकेगा। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेहलम। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक तहसील बूरेवाला में भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में प्राइवेट सॉलिड वेस्ट कंपनी ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मसूद आबिद। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब मुहिम के मुताबिक शहरों और देहातों को कूड़ा करकट से पाक करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के आउटसोर्स मॉडल मुल्तान डिवीजन में बूरेवाला पहली तहसील है जहां अमली तौर पर आगाज कर दिया है। तहसील बूरेवाला में 51,000 टन के करीब वेस्ट मौजूद है, जो अरसा दराज से लिफ्ट नहीं हुआ। इसे हम मुख्तलिफ जगहों से उठाकर और डंपिंग साइट पर लिफ्ट डंप करेंगे और शहर को ज़ीरो वेस्ट सिटी डिक्लेयर करेंगे। नए भर्ती होने वाले सैनिटरी वर्कर्स ने इस अज़्म का इज़हार किया कि वो वज़ीर आला के विजन सुथरा पंजाब के तहत पूरी दयानतदारी से काम करेंगे, अपनी ड्यूटी दयानतदारी से करेंगे और साफ सुथरा पंजाब रखेंगे। शहरियों का कहना था कि जो सफाई का काम शुरू हुआ है, इससे दही इलाकों के साथ शहर की तंग गलियों में भी सफाई मिलेगी। शहरी हल्के में और जो देहाती हल्का है उसमें भी सफाई का निज़ाम पहले से बेहतर हो रहा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत निजी सेक्टर की जदीद मशीनरी, अफरादी कुव्वत को शामिल करके मरबूत सफाई निज़ाम बनाया गया, जिसको शहरियों ने खुश आइंद करार दिया है। मसूद आबिद, PTV न्यूज़,
बुरे वाला। गन्ने की फसल तैयार होते ही पाकपतन में देसी गुड़ बनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गन्ने से लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर गुड़ कैसे तैयार किया जाता है, जानते हैं अब्बास अली आरिफी की इस रिपोर्ट में। गन्ने की फसल तैयार होते ही पाकपतन और उसके देही इलाकों में देसी गुड़ तैयार करने का सिलसिला जारी है। खेतों से गन्ना लाकर पहले उसे बेलने से गुजारकर रस निकाला जाता है और फिर उस रस को कड़ाहे में डालकर खूब पकाया जाता है। गन्ने का रस जब पककर तैयार हो जाए तो उसे ठंडा करके उसकी पेसियां बनाई जाती हैं। सर्दी के मौसम की ये खास सौगात देसी गुड़ छोटे और बड़ों में यकसा मकबूल है। सर्दियों में गुड़ की तासीर जो है वो बड़ी अच्छी है, सर्दी से बचाती भी है। गुड़ सर्दियों की खास सौगात है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं हम इधर आ जाते हैं। जो यहाँ पे गुड़ है वो हम चाय में भी इस्तेमाल करते हैं और चावलों में भी इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे बादाम वगैरह लेके आए हैं, देसी जो भी सौगात होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो हमने गुड़ के अंदर डलवाए हैं। सर्दी के मौसम में गुड़ बनाने वालों का काम भी बढ़ जाता है, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो जाता है। गुड़ बड़ा लजीज है, बहुत अच्छा है। ये शुरू तो ਅਸੀਂ अपना ही बना रहे हैं। ਵੇਲਣੇ ਚ ਰਸ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਕੇ ਇਹਦੇ काट के देंगे पेशियां लाई दिया ने। कुदरती मिठास और ग़िज़ाइयत से भरपूर देसी गुड़ खुश्क मेवाजात शामिल करके भी तैयार करवाया जाता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गुड़ का इस्तेमाल सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर मैदानी इलाकों और बालाई वस्ती सिंध में रात के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हुई। पंजाब के बेशतर अजला और बालाई सिंध में धुंध छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील लह -12, स्कर्दू -11, जबकि गोपस में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे खेल की खबरों का। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। सेंचुरियन क्रिकेट टेस्ट सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गया है। जनूबी अफ्रीका को जीतने के लिए 121 रन, जबकि पाकिस्तान को 7 विकेटें दरकार हैं। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में 27 रन 3 खिलाड़ी आउट से बैटिंग शुरू करेगी। टेस्ट के तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका ने 148 रन के हदफ के ताक़ुब में 3 विकेटों पर 27 रन बनाए। मोहम्मद अब्बास ने 2 और खुर्रम शहजाद ने 1 विकेट हासिल की। इससे पहले पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 237 रन बनाए। सऊद शकील 84, बाबर आजम 50 और आमिर जमाल 18 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका के मार्को जॉनसन ने 6 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 211 और जनूबी अफ्रीका ने 301 रन बनाए थे। बलावायो क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन अफगानिस्तान पहली इनिंग्स में 425 रन 2 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स दोबारा शुरू करेगा। अफगानिस्तान को जिम्बाब्वे की बढ़ती खत्म करने के लिए मजीद 161 रन दरकार हैं। अफगानिस्तान की बैटिंग की खास बात रहमत शाह की डबल सेंचुरी और हशमतुल्लाह शाहिदी की सेंचुरी है। रहमत शाह 231 और हशमतुल्लाह शाहिदी 141 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। जिम्बाब्वे की जानिब से ब्लेसिंग मुजरबानी और ट्रेवर ने 1-1 विकेट हासिल की। जिम्बाब्वे ने पहली इनिंग्स में 586 रन बनाए थे। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। That's well played. Very well played. The line is outside. मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेटों के नुकसान पर 228 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को भारत पर 333 रन की बढ़तरी हासिल है। खेल के चौथे दिन भारत 358 रन 9 खिलाड़ी आउट से बैटिंग शुरू की तो आखिरी विकेट 11 रन के इजाफे के साथ गिर गई।
ऑस्ट्रेलिया को भारत पर पहली इनिंग्स में 105 रन की बढ़ती हासिल हुई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्कॉट बोलांड, पैट कमिंस और नेथन लियोन ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। मेजबान टीम ने बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग्स शुरू की तो वक्फे से विकेटें गिरना शुरू हो गई। 91 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। मानस लबुशेन ने जिम्मेदाराना बैटिंग से टीम को सहारा दिया और 148 के मजमूए पर 70 रन के साथ आउट हुए। पैट कमिंस ने 41 रन की इनिंग्स खेली। भारत की जानिब से जसप्रीत बुमराह ने 4 और मोहम्मद सिराज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कैंगरूज ने पहली इनिंग्स में 474 रन स्कोर किए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी अवार्ड्स के लिए खिलाड़ियों को नामजद करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के नौजवान ओपनिंग बैटर साइम अयूब आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद हो गए हैं। श्रीलंका के कामिंदो मेंडिस, वेस्ट इंडीज के शमर जोसेफ और इंग्लैंड के घुस एटकिंसन को भी अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया है। आईसीसी विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भारत की शरियांका पटेल, स्कॉटलैंड की सिस्किया हार्ले, जनूबी अफ्रीका की एनारी ड्रिक्सन और आयरलैंड की फ्रिया सार्जेंट को नामजद किया गया है। आईसीसी अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का सिलसिला 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। लाहौर में जारी नेशनल विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गया है। पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन वापडा और लाहौर मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा सेमीफाइनल आर्मी और कराची के दरमियान खेला जाएगा। पूल राउंड के आखिरी रोज कराची ने फैसलाबाद को 19 के मुकाबले में 23 पॉइंट से हरा दिया। लाहौर ने हज़ारा के खिलाफ 4 के मुकाबले में 54 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। पूल राउंड के आखिरी रोज वापडा ने भावलपुर के खिलाफ 19 के मुकाबले में 84 पॉइंट से फतह समेटी। इवेंट का फाइनल 30 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान के अजान अली स्कॉटिश जूनियर ओपन और ब्रिटिश ओपन वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में शिरकत के लिए स्कॉटलैंड पहुंच गए हैं। अजान अली पाकिस्तान जूनियर अंडर 17 चैंपियन हैं। स्कॉटलैंड में जूनियर ओपन चैंपियनशिप 28 से 30 दिसंबर तक एडिनबर्ग में जारी रहेगी। अजान अली खान दूसरे मरहले में हिस्सा लेंगे। ब्रिटिश ओपन वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2 से 6 जनवरी तक बर्मिंघम में मुनक्किद होगी। इन खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया नीस। इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल करते हुए हुमैरा राना और रिजवान अली अहमद को हमारी न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।